students, today I am going to discuss with you next subphylum, that is subphylum Cephalochordata. Now if you talk about subphylum Cephalochordata, then they are small fish-like animals which show chordate characters. The notochord extends the entire length of the body and they have a dorsal tubular neural tube without a definite brain. Now if you talk about general characters of the members of this subphyla, then the body is fish-like, which is useful for burrowing and swimming. It has head, it has tail, appendages are absent. Appendages means limbs. Dorsal, caudal and ventral fins are present, लेकिन fins present होते हैं. And the body wall shows one cell thick non-ciliated epidermis, dermis, connective tissue, striated muscles and parietal peritoneum. There is no exoskeleton. Notochord extends from anterior end to posterior end. अब हम इसको cephalochordata किस लिए बोलते हैं? Because here the notochord extend up to the head region. आपको याद होगा जब हमने urochordata किया था तो the term urochordata implies that the notochord is present only in the tail region. Enterocellic coelom is present. That means coelom जो है that is derived from intestine. However, reduced in pharyngeal region by atrium. अब हमने जब एडमेनिया किया था तो I told you कि वहाँ पे जो सीलोम है उसका काफ़ी सारा पार्ट एट्रियम ने ले लिया. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. सीलोम जो है वो थोड़ी जगह प्रेजेंट है लेकिन वो भी ट्रू सीलोम नहीं है. I told you earlier also that true coelom should be mesodermal in origin. लेकिन यहाँ पे जो सीलोम है that is enterocellic in origin. तो यहाँ पे सीलोम जो है प्रेजेंट है लेकिन मैक्सिमम जगहों पे सीलोम की प्लेस जो है that has been taken by atrium. Then alimentary canal is long and it includes a large pharynx with many gill slits. अब जैसे हटमेनिया में हमने किया था कि बहुत बड़ा pharynx था और उसमें gill slits थे जिनको हमने stigmata बोला, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. Why? Because this animal also is a ciliary feeder. That means it filters its food from the incoming current of water. Gills will perform respiration. Circulatory system is closed. Heart and respiratory pigments are absent. एडमेनिया में हार्ट था लेकिन यहाँ पे we don't have heart. Hepatic portal system is present. Now what is this hepatic portal system? Portal system में क्या होता है बच्चे? नॉर्मली क्या है, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे अपना जो ब्लड है वो इकट्ठा करके हार्ट को देते हैं एंड देन हार्ट पंप्स अगेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स. लेकिन पोर्टल सिस्टम में ब्लड जो है वो ऑर्गन से डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता. इट गोज वाया एन ऑर्गन. अगर हेपेटिक पोर्टल है तो सारा का सारा इंटेस्टाइन का जो ब्लड है या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड है दैट गोज टू लीवर फर्स्ट एंड देन इट गोज टू हार्ट. अगर वो रीनल पोर्टल सिस्टम है तो पहले किडनी में जाएगा फिर उसके बाद हार्ट में जाएगा. फाइन. तो पोर्टल सिस्टम मीन्स द ब्लड इज नॉट गोइंग टू पोर डायरेक्टली इनटू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन बट इट इज गोइंग वाया सर्टन ऑर्गन. अगर हेपेटिक पोर्टल है तो वो लीवर के थ्रू जाएगा और अगर वो रीनल पोर्टल है देन इट विल गो थ्रू किडनी. The excretory system shows paired protonephridia with solenocytes. Brain is not present. 2 pairs of cerebral and several pairs of spinal nerves are present. Sexes are separate. Gonads are metamerically arranged and without gonoducts. अब एडमेनिया में gonoducts present थे, यहाँ पे नहीं है. Asexual reproduction does not take place and fertilization is external. Now if we talk about classification of subphylum Cephalochordata, then it includes only a single class which is termed as Leptocardi, and this class has only a single family, Branchiostomidae, and this family Branchiostomidae has only 2 genera, Branchiostoma and Asmitron. And today we are going to start with the type study of
Brachiostoma. So today I am going to start with the animal Brachiostoma, which I told you belong to subphylum Cephalochordata. Now if you talk about Brachiostoma, तो ये जितनी भी slides में आपको दिखाऊंगी, this is just the pictures which I have taken from your book only, धामी से, ताकि आपको जब आपको books मिल जाएं तो आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे डैट विल बी ओनली जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो ब्रैंकियोस्टोमा को हम एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, राइट, और हम इसको लिंसलेट भी कहते हैं। वाई वी कॉल इट एज लिंसलेट, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस एनिमल का इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों ही पॉइंटेड है, इसीलिए हम इसको लिंसलेट कहते हैं। Now if you talk about cephalochordata, तो cephalochordata retain the diagnostic chordate character throughout life. आपको याद होगा जब हमने यूरोकॉर्डेटा किया था तो आई टोल्ड यू कि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ हडमेनिया में सिर्फ लार्वल फॉर्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अडल्ट में नहीं होती, राइट। तो cephalochordata में जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, कॉर्डेट कैरेक्टर, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वो लार्वल स्टेज में भी होती है और एडल्ट में भी रहती है। And the notochord extends right from the anterior end to the hind end. That's why we term it as cephalo. Cephalo means head, chordate means notochord. जो notochord है that extends up to the head region, and there are about 25 species of cephalochordata. Now if you talk about the type study which we have to do today is Brachiostoma. तो earlier क्या था, Brachiostoma was mistakenly identified as a mollusk, लेकिन later on around 1834 में एक इटालियन zoologist ने इसको नेम किया ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, लेकिन उसने भी इसको गलत आइडेंटिफाई किया एंड ही आइडेंटिफाइड इट एज अ फिश। एंड लेटर ऑन, वेरी लेटर ऑन, it was identified कि ब्रैंकियोस्टोमा जो है that is a member of lower chordate and it is not a fish, and there are 9 species of ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें से ब्रैंकियोस्टोमा lanceolatum is the best known described species, and ब्रैंकियोस्टोमा is an ancient animal and it has remained almost unchanged for past 400 million years. Now if you talk about habitat of ब्रैंकियोस्टोमा, तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है मेरीन कॉर्डेट है, मेरीन मीन्स सॉल्टी वाटर में रहता है, एंड इट इनहिबिट्स शैलो कोस्टल वाटर्स। शैलो डीप वाटर्स में नहीं मिलेगा आपको, शैलो वाटर्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रैंकियोस्टोमा है डेट इज फुसोरियल। फुसोरियल मीन्स बरो बनाकर रहता है, और बरो बनाने के लिए ज़रूरी है कि डीप वाटर में ना हो, शैलो वाटर में हो, एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन इन द इंडियन ओशन, और कुछ कंट्रीज जैसे जापान में इट इज ईटन बाय द नेटिव्स, फाइन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हैबिट्स, तो ब्रैंकियोस्टोमा इज अ फुसोरियल, दैट मीन्स इट इज अ burrowing animal and it remains for most of the time in the burrow only. So most of the time ब्रैंकियोस्टोमा remain in its burrow, और अपना इंटीरियर पार्ट ये burrow से बाहर रखता है। Why? टू ड्रॉ दी वाटर करंट। अभी मैंने आपको बताया एक फिल्टर फीडर है, सीलरी फीडर है, डैट मीन्स पानी कॉन्स्टेंटली इसकी बॉडी के अंदर आना चाहिए, और पानी कॉन्स्टेंटली बॉडी के अंदर आने के लिए ये अपना इंटीरियर पार्ट जो है बॉडी का वो बरो से बाहर रखता है, एंड इट कैन प्रिपेयर अ बरो वेरी क्विकली विद हेड और टेल फोरमोस्ट, और ये बरो बड़ी जल्दी बनाता है। वाई? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो नोटोकॉर्ड है वो टेल से हेड रीजन तक एक्सटेंड करती है, यानी इसके दोनों ही एंड जो है वो पॉइंटेड है, इंटीरियर एंड भी पोस्टीरियर एंड भी, तो उससे क्या है ये बरो बनाने में इसको हेल्प मिलती है, वो पॉइंटेड एंड्स के कारण। When disturbed, the lancelet leaves the sand, zigzags rapidly around the water above and then dives back into sand few seconds later. The lancelet is mainly a nocturnal creature. In the evening or at night, it leaves the burrow and swims about actively, though erratically, by lateral undulations of the body. When it ceases to swim, the animal falls on its sides and lies as such for some time. Brachiostoma, like Herdmania, is a ciliary feeder and take microscopic organism present in plankton. It breathes water. Sexes are separate but alike externally. That means sexual dimorphism नहीं होता,
हम मेल और फीमेल ब्रेंकियोस्टोमा को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हर्टमेनिया में क्या था, हर्टमेनिया वॉज हर्मेफ्रोडाइट, दैट मीन्स उसमें एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों गोनैड्स थे, लेकिन यहाँ पे मेल ब्रेंकियोस्टोमा अलग है, फीमेल ब्रेंकियोस्टोमा अलग है, दो एक्सटर्नली दे आर अलाइव। Fertilization is external. Eggs are laid usually around sunset, and by morning tiny free swimming larvae hatch. The larva goes into adult in 3 months and it becomes sexually mature after about an year. The larva may at times grow larger than normal and become sexually mature without changing into adult. This phenomena is termed as neoteny. अब neoteny मैंने आपको पहले भी बताया था, जब लार्वल फॉर्म के अंदर ही गोनैड्स आ जाएं। नॉर्मली क्या होता है, लार्वा मैच्योर्स इनटू द एडल्ट स्टेज एंड देन इन द एडल्ट स्टेज गोनैड्स स्टार्ट फंक्शनिंग, लेकिन नियोटेनी में क्या है, लार्वा अभी एडल्ट पूरा बना नहीं है, लेकिन लार्वा के अंदर ही गोनैड्स जो हैं दे स्टार्ट फंक्शनिंग. This giant larva of Brachiostroma was once regarded as separate species. Now you can see in this figure 6.1, the part which I am circling is the interior part, and now I am circling the posterior part with green. Fine. अब interior और posterior पता कैसे चलता है? On the interior end you can see these finger-like projections. Can you see? The one I am circling with red. Fine. These are oral cirri. ठीक है, तो अब एम्फियोक्सिस के दोनों ही एंड्स इंटीरियर और पोस्टीरियर पॉइंटेड होते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंटीरियर है और कौन सा पोस्टीरियर है? इंटीरियर एंड पे यू हैव दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर टर्म्ड एज ओरल सिराई, और पोस्टीरियर एंड पे यू कैन सी दिस फिन, ये वाला, दिस इज अ फिन. फाइन. तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एनिमल का इंटीरियर पार्ट कौन सा है और पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है. Now if we talk about the external characters of this animal, then Brachiostroma has a pinkish translucent iridescent body around 4.5 centimeter long. So it's just 4.5 centimeter long. I will try to send few pics of live specimen in my next presentation. तो अभी के लिए you just remember that it is just 4.5 centimeter long and it is translucent pinkish in color and iridescent. Iridescent means अब होता क्या है ब्रेंकियोस्टोमा में, you have muscles which are arranged in the form of bundles. ठीक है, तो वो muscles जो हैं वो क्या करते हैं, जब उस पर लाइट फॉल करती है तो वो मसल्स डिफरेंशियली रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को, तो that gives the body iridescent appearance. ठीक है, then it has a spindle-like body being streamlined for burrowing and swimming. Both ends are pointed. ये मैंने अभी आपको बताया pointed क्यों है, क्योंकि नोटोपॉड extend करती है, and lens-like, and hence it is termed as lenslet. The name Amphioxus also indicate the same sharp at both ends. The posterior end is however more tapering than the interior end. The latter is often called as rostrum. अब interior end पे you can see this. Let me just change the color. You can see this. Can you see rostrum? The one I am circling with yellow. This part. This is rostrum. This is interior end. And you can see that rostrum is having large number of cirri. जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाई थी, ये इट हैज अबाउट 11 पेयर्स ओरल सिराई बोलते हैं इनको, दीज आर प्रेजेंट. ठीक है, और पोस्टीरियर एंड भी टेपरिंग है, पर पोस्टीरियर एंड पे यू डोंट हैव एनी रोस्ट्रम, ये जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर एंड. फाइन. देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज सिमेट्री इज बाइलेटरल. Fine. The body surface is slippery and the animal swims very rapidly and it's almost impossible to catch this animal even in aquarium. तो अगर आप इसको पकड़ना भी चाहो एनिमल को तो बहुत छोटा सा है और इसकी बॉडी बहुत स्लिपरी है और बहुत फास्ट ये स्विम करता है. फाइन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट बॉडी रीजन्स, देन the body can be divisible into 3 regions. We have anterior head, middle trunk and then we have post anal tail. अब मेन कैरेक्टर है ये कॉर्डेट का, आपको मैंने बताया था कि कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, यानी एनस के बाद टेल होनी चाहिए. ठीक है, यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज एनस और एनस के बाद टेल है.
तो नॉर्मली जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें क्या है, एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एनस के बाद यू डोंट हैव एनी टेल, एनस इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द टेल, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एनस खत्म होता है या एनस प्रेजेंट होता है वहाँ से टेल शुरू होती है, ठीक है। अब हेड के अंदर क्या है, हेड इज हैविंग अ शॉर्ट ब्लंट स्नाउट रोस्ट्रम, जो मैंने आपको बताया रोस्ट्रम बहुत स्टिफ स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन बरोइंग। अगर अपेंडिक्स की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिम्स नहीं होते, लेकिन पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते, लेकिन मीडियन फिन्स होते हैं, मीडियन और अनपेयर्ड फिन्स। अब जब आप फिशेस करते हैं तो आपको फिशेस में पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं। पेयर्ड मतलब सेम टाइप ऑफ फिन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एज वेल एज ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेकिन एम्फियोक्सिस में फिन्स जो हैं वो अनपेयर्ड है, मीडियन है, मतलब अगर डॉर्सल फिन प्रेजेंट है तो एक ही डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, वेंट्रल फिन प्रेजेंट है तो एक ही वेंट्रल फिन प्रेजेंट है, कॉर्डल भी एक ही है। तो 3 मीडियन और अनपेयर्ड फिन्स हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और एक कॉर्डल। Now if you talk about dorsal fin, तो dorsal fin is quite low and extends along the dorsal border, dorsal side पे present है, and it is supported by a single row of fin ray boxes, right? Ventral fin जो है वो वेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है एंड इट इज सपोर्टेड बाय 2 फिन रे बॉक्सेस। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि फिन रे बॉक्सेस होती क्या हैं। और जो कॉर्डल फिन है वो टेल के अराउंड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें कोई फिन रे बॉक्स नहीं होता, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिन रे बॉक्सेस, फिन रे बॉक्सेस क्या होती है? फिन रे बॉक्सेस आर जस्ट स्मॉल पैकेट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं विच हैव अ सेंट्रल नोड्यूल, मतलब सिर्फ एक सेंट्रल नोड्यूल के आसपास कनेक्टिव टिश्यू रैप हुआ होता है, उसको हम फिन रे बॉक्सेस कहते हैं। तो डॉर्सल फिन जो है उसमें हमारे पास एक फिन रे बॉक्स है, वेंट्रल में 2 हैं और कॉर्डल में एक भी नहीं है, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एपर्चर्स, एपर्चर्स तो ट्रंक जो है उसमें 3 मेन एपर्चर्स हैं, एक माउथ, एक एट्रियोपोर और एक एनस। माउथ कहाँ पे है? माउथ इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर एंड एंड इट इज ओवरहंग बाय ओरल सिराई। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये जैसे रोस्ट्रम है, अगर इफ आई कलर इट विथ ब्लू, तो इफ दिस इज रोस्ट्रम, तो रोस्ट्रम के साथ वी हैव दीज ओरल सिराई, और ओरल सिराई के अंदर वी हैव एन अपर्चर विच इज टर्म्ड एज माउथ। So now let me just explain. This is a branchiostoma in lateral view and बहुत छोटा सा एनिमल है ये, जस्ट 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें है क्या। वी हैव दिस इंटीरियर एंड, द वन आई एम कलरिंग विद ग्रीन एंड द वन आई एम कलरिंग विद येलो इज पोस्टीरियर एंड, ठीक है। अब अगर इंटीरियर एंड की बात करें तो इंटीरियर एंड में वी हैव अ स्टिफ स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड एज रोस्ट्रम। अब यही आपको मैं ये स्ट्रक्चर, दिस इज रोस्ट्रम, ठीक है। नाउ रोस्ट्रम के नीचे यू कैन सी दिस ओरल सिराई, द वन आई एम कलरिंग विद येलो, and you can see a structure which is termed as oral hood, the one I am coloring with red, fine। अब इस oral hood के सेंटर में हमारे पास एक अपर्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माउथ, फाइन। तो माउथ जो है डैट इज सराउंडेड बाय ओरल सिराई, और नॉर्मली ओरल सिराई कितने होते हैं, 11 पेयर्स, फाइन। तो हमारे पास क्या है इंटीरियर एंड पे, वी हैव अ रोस्ट्रम, वी हैव अ oral सिराई, we have a oral hood and we have a mouth, right? उसके बाद अब आ जाइए dorsal fin पे। Now can you see this, the one I am coloring with red, this is dorsal fin, ठीक है। और dorsal fin के अंदर you can see these small packets, ये जिनको मैं अभी कलर कर रही हूँ, these are dorsal fin ray boxes। डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस की एक रो है, मैंने आपको बताया था। अब आ जाओ वेंट्रल फिन पे, ये वाला है वेंट्रल फिन, तो वन आई एम कलरिंग विद येलो, ये वेंट्रल फिन, ये वाला, ठीक है। वेंट्रल फिन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हमारे पास ओपनिंग है विच इज़ एनस, और ये लास्ट में हमारे पास जिसको मैं ब्लू से सर्कल कर रही हूँ, दिस इज कॉर्डल फिन,
तो डॉर्सल फिन के अंदर वी हैव 1 रे ऑफ फिन बॉक्सेस, वेंट्रल फिन के अंदर वी हैव 2 फिन रे बॉक्सेस एंड कॉर्डल फिन के अंदर वी डोंट हैव एनी फिन रे बॉक्स। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ विच यू हैव टू सी इज नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से टेल रीजन तक एक्सटेंड हो रही है। नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस रेड कलर टू शो यू नोटोकॉर्ड। सी we have this is the नोटोकॉर्ड, जिसको मैं रेड से कलर करूँ, ठीक है। देन नोटोकॉर्ड के ऊपर वी हैव नर्व कॉर्ड, ये वाली। फाइन। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली इज प्रेजेंट इन बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। फाइन। एक और चीज़ जो आपको इस डायग्राम में देखनी है वो है, लेट मी जस्ट फर्स्ट इरेज दिस। मैं अब ब्लू से कलर करूँगी। These are these V-shaped structures. Can you see these V-shaped structures? These are muscles जिनको हम मायोमियर्स बोलते हैं। और अगर आप इन मसल्स की शेप देखो तो ऊपर वाली लेम जो है वो छोटी है, नीचे वाली जो है वो लंबी है। फाइन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मायोमियर्स। इनको क्या बोलते हैं? मायोमियर्स। फाइन। और एक और चीज़ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, these are gonads। गोनैड्स, ये जो बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स जो मैं रेड में लाइन कर रही हूँ, दीज आर गोनैड्स। और गोनैड्स के आगे हमारे पास क्या है? वी हैव फेरेक्स। ये रहा फेरेक्स, ठीक है। तो मैंने आपको इस डायग्राम में आई टोल्ड यू रोस्ट्रम, आई टोल्ड यू ओरल सिराई, आई टोल्ड यू ओरल हुड, आई एक्सप्लेन्ड यू dorsal fin, then ventral fin, then caudal fin, then we have anus। anus कहाँ पे है? जहाँ पे ventral fin खत्म होता है वहाँ पे anus है। then I told you about muscles। muscles जो है वो V shaped arranged है और इनको हम myomeres बोलते हैं, ठीक है। तो अब I told you कि इंटीरियर एंड पे रोस्ट्रम प्रेजेंट होता है एंड इट लीड्स टू ओरल हुड। ओरल हुड मैंने आपको बताया अभी। और ओरल हुड के आसपास हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ओरल सिराई, जिनको हम बक्कल टेंटिकल्स भी बोलते हैं। द जेनेरिक नेम ब्रेंकियोस्टोमा मीन्स गिल माउथ, रेफर्स टू ओरल सिराई विच वर अर्लियर कंसिडर्ड गिल। ओरल सिराई बियर टेक्टाइल रिसेप्टर्स। तो ब्रेंकियोस्टोमा अर्लियर जो नाम इसको दिया गया एनिमल को, दैट वाज बिकॉज ऑफ ओरल सिराई, बिकॉज इट वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज गिल्स, ठीक है। उसके बाद आ गया एट्रियोपोर। अब अगर आपको ध्यान हो लास्ट डायग्राम में, वेंट्रल फिन जो है वो एट्रियोपोर जहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो एट्रियोपोर इज अ स्मॉल एपर्चर सिचुएटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। और आपको याद होगा हमने एट्रियल एपर्चर किया था। एट्रियल एपर्चर क्या था हर्टमेनिया में? एट्रियल एपर्चर जहाँ से पानी बाहर जा रहा था। और एट्रियल एपर्चर जो है दैट बेसिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू एट्रियोपोर, ठीक है। तो एम्फियोक्सिस भी सेलरी या फिल्टर फीडर है, तो इसमें भी पानी बॉडी से बाहर जाएगा। और पानी बॉडी से बाहर कैसे जाएगा एम्फियोक्सिस में? थ्रू एट्रियोपोर। और एट्रियोपोर जो है दैट इज बेसिकली द आउटलेट फॉर स्पेशियस कैविटी which is termed as atrium and it is present around pharynx. Anus lies at the base of caudal fin on the ventral side, but a little to the left side, the median line itself for defecation. तो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में एनस दिखाया था, जहाँ पे वेंट्रल फिन शुरू होता है वहाँ पे एट्रियोपोर प्रेजेंट है, और जहाँ पे वेंट्रल फिन खत्म होता है वहाँ पे एनस प्रेजेंट है। द मिडल पार्ट ऑफ बॉडी बिटवीन, अब जो एनस और एट्रियोपोर के बीच में जो रीजन है बॉडी का, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल रीजन, राइट। उसके बाद एक और टर्म आती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटाप्लूरल फोल्ड्स। अब मेटाप्लूरल फोल्ड्स क्या है बच्चे? जब हम वेंट्रल साइड देखिए एनिमल की, लेट्स सी दिस डायग्राम। अब इसमें आपको ये वेंट्रल व्यू है,
जो अभी लास्ट स्लाइड में देखा था दैट वाज साइड व्यू लेटरल। अब वेंट्रल व्यू अगर आप देखो तो इंटीरियर जो 2/3 बॉडी है जिसको मैं ब्लू से कलर कर रही हूँ, ये वाली, ये सारा बॉडी जो है इसकी फ्लैट, ठीक है, फ्लैट मीन्स इट हैज नो एक्सटेंशंस। लेकिन बाद में बॉडी पे वी हैव एक्सटेंशंस जिनको हम बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स। सो बेसिकली होता क्या है, जो इंटीरियर 2/3 बॉडी है जिसको मैंने ब्लू कलर से कलर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एपीफ्लूअर। व्हाई वी कॉल इट एज एपीफ्लूअर? क्योंकि इसके साइड्स पे कुछ भी एक्सटेंशंस नहीं है, लेकिन जो बाद का बॉडी है उसमें यू कैन सी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडी। अब होता क्या है, ये दोनों फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एक इधर है और एक इधर है, इनको हम बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स। और ये फोल्ड्स जो हैं पोस्टीरियर एंड पे आके आपस में जुड़ जाते हैं, फाइन। और ये जब जुड़ जाते हैं देन ये जो रीजन बनता है इसको हम बोलते हैं ब्रेंकियोजेनिटल रीजन, फाइन। लेट मी जस्ट रीड इट। द वेंट्रल सरफेस ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द ट्रंक is nearly flat and is called epifloor. Its lateral margins are produced downward into a pair of thin folds which are termed as metapleural folds or lateral fins. There are continuous. These are continuous in front with the lateral edges of the oral hood and unite together posteriorly at the inferior port. The metapleural folds were earlier believed to represent the beginning of paired appendages of vertebrate. A view no longer held. The region bearing metapleural folds contain pharynx and gonads and is thus termed as branchiogenital region. तो वेंट्रल व्यू में जो इंटीरियर पार्ट है बॉडी का वो फ्लैट है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में वी हैव स्मॉल फिन्स विच आर टर्म्ड एज लेटरल फिन्स या मेटाप्लूरल फोल्ड्स। और ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो हैं पोस्टीरियर पार्ट में आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी लेफ्ट साइड का मेटाप्लूरल फोल्ड विल ज्वाइन to the right side of the metapleural fold and they form a region which is termed as branchiogenital region. उसके बाद आ जाओ बॉडी वॉल पे। नाउ बॉडी वॉल, अभी मैंने जब जर्नल कैरेक्टर्स कराए आपको सिफेलोपॉडेटा की, तो मैंने बताया आपको कि जो एपिडर्मिस है वो नॉन सीलिएटेड है और सिंगल लेयर्ड है, फाइन। तो इफ यू टॉक अबाउट बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल इन ब्रेंकियोस्टोमा कंसिस्ट ऑफ 3 टिश्यूज। वी हैव स्किन, we have muscles and we have peritoneum. Skin shows 2 regions, the outer thin epidermis and inner thick epidermis. There is no cuticle or tunic. अब epidermis में भी क्या है, epidermis consists of single layer of rectangular cells that rest on a basement membrane. अब ये डायग्राम आप देखो, this is epidermal cells and these are resting on the basement membrane. ये वाली basement membrane है। और ये जो cells है epidermal cells, ये larval stages में they are ciliated, means they have cilia, लेकिन adults में they lose cilia. And the epidermis contain gland cells and sensory cells scattered among their supporting cells. It lacks pigment cells. So next layer of skin is dermis, ठीक है। अब dermis जो है that is composed of connective tissue and contains connective tissue fibers, blood vessels and nerve fibers. These fibers are arranged in successive sheaths and these sheaths are oriented in different directions. अभी मैंने आपको बताया था iridescence. Iridescence is because of, iridescence means अगर उस ब्रेंकियोस्टोमा की बॉडी पे लाइट पड़ती है तो एवरी पार्ट ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा बॉडी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट डिफरेंटली, ठीक है, उसको हम इरिडिसेंस कहते हैं। एंड दैट इरिडिसेंस इज बिकॉज ऑफ द डर्मिस ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। देन इनसाइड द डर्मिस वी हैव मसल्स। अब मसल्स मैंने आपको बता दिया, दे आर वी शेप्ड एंड दे आर टर्म्ड एज मायोटोम्स या उनको मायोमियर्स भी बोलते हैं। And there are about 50 to 75 myotomes on each side, मतलब लेफ्ट साइड पे भी होते हैं और राइट साइड पे भी होते हैं। एंड एक चीज जो और एडिशनल है, हर मायोटोम इज एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं मायोसेप्टा और मायोकोमेटा। सो यू हैव 4 डिफरेंट टर्म्स, मायोमियर्स, मायोटोम्स, मायोसेप्टा एंड मायोकोमेटा। मायोमियर्स और मायोटोम्स आर सेम, these are muscles, ठीक है।
अब इन मसल्स को जो कनेक्टिव टिश्यू सराउंड करता है उनको हम मायोसेप्टा या मायोपोमेटा, राइट। और हर मायोमियर के अंदर, मतलब एक मसल के अंदर हमारे पास कैविटी होती है जिसको हम मायोसील बोलते हैं, और मायोसील के अंदर हमारे पास वी हैव मायोसाइट्स। मायोसाइट्स आर बेसिकली मसल सेल्स, फाइन। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 50 to 75 मायोटोम्स या मायोमियर्स विच आर सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोसेप्टा या मायोपोमेटा, एंड ईच मायोमियर हैज एन इंटरनल कैविटी विच इज टर्म्ड एज मायोसील, और उस मायोसील के अंदर वी हैव सेल्स विच आर टर्म्ड एज मायोसाइट्स, फाइन। And in addition to myocytes, the myocele is lined by a low non-contractile ciliated cells that complete the coelomic lining and may help in circulating the coelomic fluid within. The muscles of ventral and ventrolateral regions are thin, unsegmented and transparent. और जो ये जो बॉडी मसल्स हैं ब्रेंकियोस्टोमा के, दे आर स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मीन्स वॉलंटरी है, फाइन। उसके बाद आ जाओ पेरिटोनियम पे। अब थर्ड पार्ट जो बॉडी वॉल का है, डेट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो है वो मसल्स के अंदर की लाइनिंग है, एंड इट इज थिन mesodermal cells resting on the basement membrane. In the pharyngeal region, the peritoneum is restricted to certain small tracts. Function क्या है? The body wall is protective, secretory, sensory, locomotory and supportive in function. Protection is provided by mucus. Sensitivity is afforded by sensory cells. Locomotion is brought by myotomes, and support is imparted by various connective tissue sheets. The peritoneum secretes coelomic fluid. अब सीलोम जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। वो फ्लूइड कौन secrete करता है? पेरिटोनियम। So next we will talk about skeleton in branchiostoma. So there is no exoskeleton in branchiostoma. Endoskeleton present होती है, and it includes notochord, dense fibrous connective tissue, rods and plates and finger boxes. अब पहले हम बात करते हैं notochord की। तो I told you कि notochord जो है वो present होती है। Let me just show you in this diagram. The one I am coloring with green is notochord, ठीक है। अब notochord के ऊपर हमारे पास नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, जो मैं येलो में कलर कर रही हूँ, राइट। तो अब ये नोटोकॉर्ड जो है कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेल्स। द नोटोकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रो ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक सेल्स, और दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक फाइब्रस और एक होमोजेनस, ठीक है, ऑल्टरनेट तरीके से। यानी एक फाइब्रस सेल होगा, फिर एक होमोजेनस, फिर एक फाइब्रस, फिर एक होमोजेनस, और एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है इन सेल्स के बीच में। और अपर एंड लोअर एंड्स पे वी हैव नोटोकॉर्ड कैनाल्स विच आर फिल्ड विथ कॉर्डियल कैप्सूल्स, राइट। और वी हैव इलास्टिका इंटरना एंड नोटोकॉर्डियल शीट। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, दोनों तरह के सेल्स एंड इलास्टिक इंटरना, ये सारी नोटोकॉर्ड को स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं और उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। The notochord serve as an axial skeleton maintaining form of the body and preventing its shortening on contraction of myotomes. This it carries out by means of turgor in its cells and fluid matrix in between, acting them against the resistance of notochordal sheath. मतलब जो टर्गर प्रेशर है सेल्स का, वो नोटोकॉर्ड को स्टिफ रखने में हेल्प करता है। So this is the diagram of what we did in the last slide. ये है नोटोकॉर्ड की डायग्राम। इसमें एक टीएस है, ए वाला टीएस है और बी वाला जो है वो एलएस है। तो अगर हम टीएस पहले देखें तो यू कैन सी दीज सेल्स, एक है फाइब्रस सेल और एक है होमोजेनस सेल। एक होमोजेनस है और एक फाइब्रस है। तो अगर आप बी वाली डायग्राम देखो तो यू कैन सी द वन आई एम कलरिंग विद येलो, दीज आर होमोजेनस सेल्स, और जिनको मैं रेड से कलर कर रही हूँ दीज आर फाइब्रस सेल्स। तो आप देखो कि एक होमोजेनस है, एक फाइब्रस है, एक होमोजेनस है और एक फाइब्रस है। और ये होमोजेनस और फाइब्रस
दोनों ही they are enclosed in an elastic sheath. You can see one I am coloring with red. This is elastic sheath. ठीक है, और डॉर्सल कैनाल प्रेजेंट है ऊपर की तरफ और वेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है नीचे की तरफ, और दोनों ही डॉर्सल वेंट्रल कैनाल के अंदर यू कैन सी दिस ब्लैक डॉट्स, ये वाले, दीज आर कॉर्डल सेल्स. फाइन. तो बेसिकली होता क्या है, these homogeneous and these fiber cells along with this elastic sheath, they provide stiffness to the notochord, और notochord as an endoskeleton काम करती है in branchiostoma. ठीक है, उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट इज dense fibrous connective tissue. This tissue provides firmness to the body by filling the space between its organs. It is continuous throughout the body and it forms the inner layer of epidermis and outside the parietal peritoneum, surrounds the notochord and cover the nerve cord. It also encloses the myotomes, whose fibers are surrounds the Fenway boxes too, and inserted to it. It surrounds the Fenway boxes too. फाइन. तो होता क्या है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, जितने भी ब्रेंकियोस्टोमा के में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसके अराउंड डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. जैसे पैकिंग नहीं होती, हम कोई डेलिकेट मटेरियल, इफ वी पार्सल एनी डेलिकेट मटेरियल टू अदर प्लेस, तो हम उसको अच्छे से पैक करके भेजते हैं. तो जो पैकिंग है, तो इन ब्रेंकियोस्टोमा dense fibrous connective tissue is basically serve as a packing tissue, जो हर ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और बॉडी को स्टिफनेस प्रोवाइड. सो दिस इज अनदर डायग्राम शोइंग द इंटीरियर एंड ऑफ द ब्रेंकियोस्टोमा. अब इंटीरियर एंड में मैंने आपको बता दिया था कि ग्रीन में जो मैं कलर कर रही हूँ दिस इज नोटोकॉर्ड, और जो मैं रेड में कलर कर रही हूँ दिस इज नर्व कॉर्ड, दिस इज नर्व कॉर्ड. फाइन. अब आप देखो ग्रीन, अगर मैं दोबारा कलर सिलेक्ट करूँ तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो हेड तक जा रही है. ठीक है, अब हेड रीजन में हमारे पास क्या है, वी हैव दिस रोस्ट्रम. ठीक है, और रोस्ट्रम के नीचे यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ ओरल सिराई, ये वाली, ये सारी ओरल सिराई हैं. अब एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करो वो है ओरल सिराई के अंदर स्केलेटल रॉड्स. कैन यू सी दिस लेबलिंग, ओरल सिराई के अंदर वी हैव स्केलेटल रॉड्स एंड वी हैव अनदर स्ट्रक्चर ओरल वुड, ये जिसको मैंने ब्लू में कलर किया है, और ओरल वुड में भी हमारे पास स्केलेटल रॉड्स. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास दिस रेस्ट ऑफ द पोर्शन आई विल टॉक व्हेन वी विल डू डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अभी आपको इसमें मैंने आपको क्या क्या दिखाया, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, एंड वी हैव रोस्ट्रम, देन वी हैव ओरल सिराई, देन वी हैव ओरल वुड. और एक चीज़ जो आपने इसमें ध्यान रखना है कि ओरल सिराई और ओरल वुड के अंदर हमारे पास स्केलेटल रॉड्स प्रेजेंट है. ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, द वन आई एम कलरिंग विद येलो, दिस इज ऑल फेरिंग्स रीजन. राइट. और माउथ हमारा कहाँ पे होता है इसमें, लेट मी जस्ट कलर इट विद पर्पल. तो ये जो ओरल सिराई है उसके बीच में यहाँ पे वी हैव माउथ. राइट. So continuing from the last slide, I showed you the rods and plates which are present in oral cirai and oral wood. Fine. These both rods and plates are part of endoskeleton of branchiostoma. Along with it, you can see endostyle. एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, जैसे कि हडमेनिया में था. तो एंडोस्टाइल इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय प्लेट्स, सो दीज प्लेट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ endoskeleton. Then we have Fenway boxes. As I have already told you, the dorsal fin has a single ray of Fenway boxes and ventral has two rows of Fenway boxes. Both these Fenway boxes forms the part of endoskeleton, and I have told you that these Fenway boxes are just the blocks of gelatinous matter wrapped by connective tissue. Fine. These Fenway boxes are basically modified coelom. Apart from that, we have fluid, coelomic fluid present in the coelomic spaces. Now I have told you that peritoneum helps in secreting, or peritoneum secretes coelomic fluid. These coelomic fluid
fills the coelomic spaces and also serve as endoskeleton. Now in this last slide I have given few links, few YouTube links which you can click on and just see how this representative of cephalochordata या branchiostoma looks like. Do watch these videos given in these links to understand the morphology of branchiostoma.